Hello guys, welcome to Rahul Pundent Study channel. Today in this video we will talk about new update regarding admission list 2021 of PG LLB and LLM latest notification, and also regarding marks updation portal open again, why marks updation is necessary. I also got a notification on mail from University of Delhi. So guys, welcome back, and I request to all of you, please subscribe this channel and press the bell icon for getting notification. And you can also join my Telegram channel. You can search Rahul Prudent Study. Okay guys, move ahead. Guys, you can search in Telegram Rahul Prudent Study. You can see it's new channel. Okay, I have shared a few notification regarding admission. You can also join and see the notification. Okay, it is latest notification. You can see postgraduate admission 2021-2022 marks updation portal has been opened once again from 9 p.m. November 18, 2021 to 11:59 p.m. November 21st 2021. आपको 4 दिन के लिए और अप्रॉक्स 4 डेज आपको टाइम मिल रहा है फिर से मार्क्स अपडेट करने का, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मार्क्स अपडेट नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी ने मार्क्स अनाउंस नहीं किया, पब्लिश नहीं किया। सो आपको एक बार और मौका मिल रहा है मार्क्स अपडेट करने का। हालांकि जिसको अभी तक भी फिर भी मार्क्स नहीं मिल पाया है, उसके लिए भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में उसके लिए क्या करना होगा आपको। सो आप लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके ओके, आई एम गोइंग टू शो यू a mail from University of Delhi. Okay guys, this message from Delhi University regarding admission 2021. Okay guys, I'm going to read this message. Dear applicant, it has come to our notice that despite opening the portal several times for candidates to update their marks, some candidates failed to update their undergraduate marks convert CGPA into percentage, which was a mandatory requirement for creating merit list. You can also read guys, mandatory requirement for creating merit list. ऐसा करने का मतलब है कि सेवरल टाइम्स आपको पोर्टल ओपन किया गया, बट बहुत सारे कैंडिडेट ने अपना मार्क्स अपडेट करने में असफल रहा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का यूनिवर्सिटी मार्क्स पब्लिश नहीं किया है और बहुत सारे कैंडिडेट को पता नहीं चला होगा और सीजीपीए में कन्वर्ट नहीं कर पाया। और ये रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी है, क्योंकि मेरिट लिस्ट अपडेट करने में सहूलियत होगी, यूनिवर्सिटी को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, इसलिए फिर से एक बार ओपन कर दिया गया है पोर्टल ताकि आप लोग अपडेट कर सकेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा अपडेशन मार्क्स पोर्टल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल सच कैंडिडेट्स आर हेयर बाइट इन्फॉर्म दैट द पीजी एडमिशन पोर्टल हैज़ बीन ओपनड वंस अगेन फ्रॉम 9 PM November 18 to 11:59 PM November 2021. ओके, आपको तीन से 4 दिन का और समय मिल रहा है गाइज। यू कैन ऑल्सो अपडेट योर मार्क्स एंड कन्वर्ट इनटू CGPA. ऑल rule and regulation you can show on portal. In case of you got problem for updating your marks, you can comment your concern in the comment box. I will happy to help you guys. Okay, next paragraph पढ़ते हैं। Student of University of Delhi who wish to be considered for merit based admission must convert their cumulative
grade point average that is CGPA to percentage using the following formula। फार्मूला भी आपको पोर्टल पर मिल जाएगा। ये स्पेशली जो डी के बच्चे हैं उनके लिए है कि CGPA में कन्वर्ट करना हो, परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो CGPA से, तो उसमें 9.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बट वेरियस यूनिवर्सिटी का अलग अलग रूल रेगुलेशन है, किसी को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, किसी को 9.5 से, मेरे यूनिवर्सिटी का भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। आपके मार्कशीट पर आपको दिया गया होगा, आप वहाँ से देख लेंगे, उससे मल्टीप्लाई करके अपना CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। द कैंडिडेट्स हु विल अपडेट देयर मार्क्स नाउ विल बी accommodated in subsequent lists as per their merit and availability of seats. Okay, this is the last opportunity to update the marks. No grievance related to inability to update or incorrect entry of the marks will be entertained henceafter. गाइज ये आपको लास्ट समय दिया जा रहा है, लास्ट टाइम दिया जा रहा है अपडेट करने के लिए मार्क्स। एंड अगर आपको कोई त्रुटि पूर्ण अपडेट नहीं करना है, जो भी आपको मार्क्स मिले हैं उसके रिगार्डिंग जो रूल है, फार्मूला दिया गया है, उसके रिगार्डिंग आपको अपडेट करना है। इन केस आपको यूनिवर्सिटी अभी तक मार्क्स प्रोवाइड नहीं किया है, आपका रिजल्ट नहीं आया है, उसके लिए आपको अंडरटेकिंग देना होगा। आपको मैं अपने टेलीग्राम पे PDF दे दूंगा, जो ऑफिशियल PDF है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, अंडरटेकिंग फॉर्म, उसको प्रिंट करके आप भर के उसका स्कैन करके फिर से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। आपको बताया भी मैं, राहुल पुटेंट स्टडी करके आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करोगे, 12 अभी सब्सक्राइबर है, न्यू टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ज्वाइन हो जाओगे तो आपको सब चीज़ मिल जाएगा PDF फॉर्म में और PNG फॉर्म में। ओके, यू आर एडवाइज टू रेगुलरली चेक द एडमिशन वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी admission.eod.ac.in। ये भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइस। एडमिशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से मैसेज था, आपको मैंने पढ़ के बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे कि क्यों नेसेसरी है अपडेशन ऑफ मार्क्स। ओके गाइस, तो मैं आपको बता दूं, मार्क्स अपडेट करना तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसलिए तो ज़रूरी है। यू कैन ऑल्सो रीड द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर क्रिएटिंग मेरिट लिस्ट, यू कैन ऑल्सो रीड हियर गाइस। और इन केस ऑफ किसी का जो मान लो OBC से है, अगर उसका इंटेंस मार्क टाई होता है, उस समय आपका ग्रेजुएशन का मार्क कंसीडर किया जाता है। अगर ग्रेजुएशन के मार्क्स का भी टाई कर रहा है तो उस समय इंटर का, इसी तरह करके आपको मैट्रिक का अगर तीनों अगर संयोगवश ट्राई कर रहा है, ठीक है, तो आपका एज कंसीडर करके आपका मेरिट लिस्ट, रैंक लिस्ट तैयार होगा। इसलिए आपको मैंडेटरी है आपको मार्क्स अपडेट करना, ठीक है। यही मेन कॉज है, ठीक है, बिहाइंड मार्क्स अपडेशन। तो आप लोगों के पास मौका है, प्लीज़ अपना मार्क्स अपडेट कर लें। अगर इनकेस आपका मार्क्स नहीं मिल पाया यूनिवर्सिटी से, तो आपको अंडरटेकिंग देना होगा। अंडरटेकिंग फॉर्म का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा, उसमें आपको ग्रुप में ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाई LLB एंड LLM एडमिशन लिस्ट नोट पब्लिश एट। उसके पीछे क्या कारण है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। लेट्स मूव अहेड गाइज। सबसे पहले हम चलेंगे एडमिशन पोर्टल पे, जो यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे आपके बहुत सारे लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है, जो प्रीवियस लिंक है बहुत सारे, ठीक है। अगर आपको खुद से डाउनलोड करना है तो यहाँ से अंडरटेकिंग माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके। मैं डाउनलोड कर लिया, इसलिए दोबारा डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखा रहा है। आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा है अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेशन। अगर आपके पास माइग्रेशन भी नहीं मिल पा रहा है यूनिवर्सिटी से, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अभी जब ग्रेजुएशन का मार्क्स नहीं मिल पाया तो माइग्रेशन कैसे देंगे, तो उस केस में आपको अंडरटेकिंग दे सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह सबमिशन ऑफ रिजल्ट का भी अंडरटेकिंग दे सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है यूनिवर्सिटी में, उसका दे सकते हैं। OBC का भी, EWS का भी अंडरटेकिंग दे सकते हैं। और ST SC PWD का, इस सबका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू एडमिशन लिस्ट portal. You can see guys, LLB and LLM एडमिशन फर्स्ट कटअप इज शोइंग अवेटेड। इसका मतलब है आपको इंतजार करना पड़ेगा कुछ टाइम तक, ठीक है। वो कितना टाइम लगेगा, क्यों इतना टाइम लग रहा है, उस सब बात करेंगे। आई गेस कि 72 PG कोर्सेज कंडक्ट कराती है यूनिवर्सिटी, उसमें से
आपको अप्रोक्स 60 पीजी कोर्सेज का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया, फर्स्ट कट ऑफ डिक्लेयर कर दिया गया है आउट ऑफ 72, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग LLB एंड LLM। ओके, तो गाइज इसका कारण यह है कि जो आपका पीजी जो LLB एंड LLM है उसका जो फर्स्ट कटअप आएगा उसमें आपका A to Z डिटेल्स होगा, नेम, आपका फॉर्म नंबर, एप्लीकेशन नंबर जो भी है, रोल नंबर, इन तीनों में से कोई एक, ठीक है। आपने कितना मार्क्स पाया है ए भी रहेगा, आपको कौन सा सेंटर अलॉट हुआ है ए भी रहेगा, ठीक है। आपको टाइम टेबल रहेगा कब से कब तक आपको एडमिशन कराना है, कब अपना फीस सबमिट करना है, ये सब चीज़ आपको उसमें रहेंगे। इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि कंसोलिडेटेड रैंक आता है हर साल, इस साल नहीं आ रहा है, उसी में सबको एक बार ही दिखाई देगा, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो आप लोग पैनिक ना हो, आप लोग अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लें, प्लीज़ गियर अप विथ डॉक्यूमेंट, ठीक है। अपना हथियार नहीं छोड़ा जाता है, तो इसलिए आप होशियार हैं, ठीक है ना। तो अपना जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हो पा रहा है, ठीक है, वो अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखें। डॉक्यूमेंट के लिए भी कौन कौन डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, यूट्यूब चैनल पड़ा है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बस आपको डॉक्यूमेंट रेडी रखना है, पैनिक नहीं होना है। और कब तक रिजल्ट आएगा ये मैं बता दूं आपको, कमिंग मंडे तक रिजल्ट आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। बस आप लोग डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, बार बार देखते हैं ग्रुप में मैसेज आता है कि डॉक्यूमेंट रिजल्ट आया कि नहीं आया, कब तक आएगा। जब आपको पता है कि 2 से 3 दिन तक में टाइम लग सकता है तो बार बार मैसेज करने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। आप लोग अपना अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखें, रिजल्ट टाइम पे आ जाएगा, डोंट वरी, उसका टेंशन ना लें, ठीक है। और रिजल्ट आएगा तो सबको पता चल ही जाएगा, आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 1 दिसंबर से कमेंसमेंट होना है क्लासेज का, आपको पता है कि क्लासेस भी ऑनलाइन होनी होगी, मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन होगा क्योंकि नोटिफिकेशन कोई ऑफलाइन का अभी तक है नहीं। और दिल्ली में 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन जैसा माहौल हो गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऑफलाइन क्लासेज होगा। और कुछ नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कि जब तक आपको UGC वगैरह अनाउंस नहीं कर देता है कि 100% जो सीट के कैपेसिटी है उसमें बचे जा सकते हैं पढ़ने के लिए, तब तक मुझे नहीं लगता कि ऑफलाइन क्लास शुरू होगा, क्योंकि 50 की 70% तक ये अलाउ है। अब जो सीट कैपेसिटी है उसमें बच्चे को ला सकते हैं, पढ़ाने के लिए भेज सकते हैं, मतलब अलाउ कर सकते हैं। तो बाकी और लोगों का क्या होगा, इसमें क्या होगा कि 2 से 3 शिफ्ट में पढ़ाई होगी, बहुत सारा होच पच हो जाएगा। और न्यू कमर के जो स्टूडेंट हैं, उनका फ्रेशर हैं, उनके लिए भी तो इतना सारा शेड्यूल करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल से, लगता है, ठीक है। अब बहुत सारे एक लॉ ही नहीं है, बहुत सारे PG कोर्सेज हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अभी यूनिवर्सिटी मुझे नहीं लगता है कि ऑफलाइन क्लासेज चलाएगी, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली है कि आपको ऑनलाइन क्लासेज होगा, तो अपना नेटवर्क का व्यवस्था तो हम लोग करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो डोंट वरी, बट एडमिशन होना ही बड़ी अच्छी बात है, मतलब एक अच्छा चांस है एडमिशन लेकर। और जिसका भी एडमिशन हो रहा है, जो भी लगता है कट ऑफ से ऊपर है, कट ऑफ के अराउंड है, ठीक है, जो बॉर्डर पे भी है, डोंट वरी, इस बार कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला है, उसी के पैरेलल में रहने वाला है अगर कंपेयर किया जाए 2020 का, तो ठीक है। तो जो भी लगता है सेफ जोन में है, अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखे। जिसको भी लगता है कि 5 से 7 नंबर कम आ रहा है मेरा, वो भी अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखे, क्योंकि आपको 3 से 4 लिस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर 3 सेक्शन बना हुआ है, फर्स्ट कट ऑफ, सेकेंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ, जनरली आता ही है हर साल। इसके अलावा अगर सीट खाली रहता है तो आपको एक और लिस्ट दिया जाएगा जो जनरल लिस्ट होता है, उसमें आपको बहुत सिंपल बोला जाएगा आप इतना, यानी कि 190 जिसका मार्क्स है अपने जल्दी से अपना हाथ खड़ा करें, वहाँ पे जनरल काउंसलिंग होता है, वहाँ पे आपको एडमिशन चांस मिलता है, ठीक है। तो जिसका जिसका जो जो भी एग्ज़ाम दिए हैं, लगता है कि हाँ मेरा चांस बनता है, अगर 10 नंबर के कम है भी है, अराउंड में है, तो अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखें, डोंट वरी, ठीक है। होप रखें, डोंट वरी, अगले कमिंग 6 मंथ भी आपके पास टाइम मिल रहा है, अगर अच्छा से प्रिपरेशन करें ज़रूर आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको नेक्स्ट ईयर में तो आपको बेंगलुरु में भी NLU है, ओपन कर दे रहा है 3 इयर्स प्रोग्राम, तो आपके पास बहुत सारा मतलब द्वार खुल जाएगा, ठीक है, एंट्रेंस देने का, एडमिशन लेने का, अच्छे से इंस्टीट्यूट में पढ़ने का, ठीक है। और इस पोर्टल पे, इस चैनल पे आपको एंट्रेंस के रिगार्डिंग में मटेरियल
प्रोवाइड होगा, यूट्यूब पे वीडियो बनेगा पॉलिटिक्स से रिलेटेड, लीगल से रिलेटेड। आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने जो पढ़ा है, कैसे प्रिपरेशन किया है, आगे इस वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में कमिंग विदिन 20 आफ्टर मतलब एडमिशन आई विल स्टार्ट द MCQ series of polity, legal section and current affairs etc. and English, maths, reasoning, ऑल चीज़ का आपको स्ट्रेटजी के साथ बताया जाएगा, क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, कौन सा बुक आपको प्रेफर करना चाहिए। बहुत सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड भी किए जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई कोचिंग की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप सिंसियरली पढ़ोगे डेली रूटीन बनाकर, आवर पे डिपेंड नहीं करता, एक दिन में आप कितना टॉपिक कवर करते हो ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको ऑल स्ट्रेटजी बताया जाएगा कमिंग वीडियो में, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, जो टेलीग्राम ऑफिशियल ग्रुप है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर कोई नोटिफिकेशन और आता है तो ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एडमिशन, एनीथिंग रिगार्डिंग स्टडी, आप अपने कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका नंबर भी कुछ लगता है कि मेरा इतना नंबर है, एडमिशन हुआ है कि नहीं, वो भी अपना कैटेगरी के साथ मेंशन कर सकते हैं। आपको जरूर से जरूर रिप्लाई मिलेगा, व्हेनेवर आई गेट टाइम रिप्लाई श्योरली। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।